Hi, hello there. And now I have a next set of 5 sentences. 41, sentence number 41. He lives in Surat only. He lives in Surat only. Only is such a wonderful and beloved word that we all like to use it again and again, all the time. We completely have fallen in love with this word. इससे हमें इतना प्यार है इस word से, only से हमें इतना प्यार है कि हम इसको छोड़ना ही नहीं चाहते. I have come to you only. I live at Delhi only. I live in Delhi only. Only should be used with care. Only needs care, and not care more than that. I feel that you must take caution while using only in a sentence. He lives in Surat is a perfect sentence. You do not use to stress or emphasize anything. The person who is listening to you is he's convinced that you live in Surat. उसको कोई शक नहीं है, उसको कोई डाउट नहीं है कि आप सूरत में नहीं रहते हैं. आपको कोई emphasis इसके ऊपर डालने का ज़रूरत नहीं है. You do not have to lay any emphasis on the fact that you live in Surat only. Do not use only here. It is a perfect example of redundancy. Excess of words. आप बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करके आप बहुत छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं. तो शेक्सपियर ने कहा है कि जो ब्रेविटी है, ब्रेविटी इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज. ब्रेविटी की जितने कम शब्दों का आप इस्तेमाल करके जितने ज़्यादा अच्छे मैसेज को आप सेट आउट कर सकते हैं, वो लैंग्वेज की खूबसूरती कहलाती है. ब्रेविटी इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज. सो ही लिव्स इन सूरत. प्लीज डू नॉट यूज only every time when it is redundant and it's not needed at all. So drop only here and put a full stop after Surat. So I live at Muzaffarnagar. You live in some city, or he lives in Delhi or in Surat. Perfect sentence. Sentence number 42, can you borrow me that book? Can you borrow me that book? It means book is there and you want the book. You want to read that. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, borrow का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ लोन लेना. एक अच्छा वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, लोन. आप कह सकते हैं बोरो की जगह. देखिए, जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं, इट्स नॉट योर्स, और ये आप किसी से लेना चाहते हैं, इट मीन्स यू कैन यूज द वर्ड लोन. कैन यू लोन दिस बुक टू मी? और इफ यू डू नॉट यूज लोन, देन यू कैन यूज लैंड, LEND. कैन यू लैंड दिस बुक टू मी? कैन यू लैंड मी योर बुक प्लीज? सो लैंड और लोन you can use in place of borrow. Yes, somebody might ask you, may I borrow your pen please? May I borrow your pen please? It means you are asking, okay, if I'm asking, I am the one who wants something and I want something from you. I want to have this pen. The pen is just lying in front of me on the table. So I can say, and somebody is present here, I can ask for the pen. May I borrow your pen please? May I borrow your pen please? Could you please lend me this pen? So somebody will lend something to you. You will borrow something from somebody. अगर हिंदी में आप जाना चाहते हैं तो आप lend यानी कि उधार देना, borrow यानी कि उधार लेना, loan यानी कि उधार लेना. So loan and lend दोनों उधार लेना, उधार देना. Can you lend me? क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? और अगर मैं बोरो करना चाहता हूं, क्या मैं आपकी किताब बोरो कर सकता हूं? क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूं? तो यहां पे बोरो की जरूरत नहीं है. कैन यू लेंड मी? कैन यू लोन मी दैट बुक? तो यहां पर हम यूज नहीं करेंगे बोरो का, और हम यहां से बोरो को इरेज करते हैं. वी आर इरेजिंग एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एनी एरर, कमिटिंग एनी एरर. सो कैन यू lend me that book, or can you loan, LOAN, loan me that book, right?
So I have given you two beautiful words. You can use loan. आपने केवल अभी पैसे के लोन के बारे में बात सुना होगा, लेकिन लोन ऐसे भी कर सकते हैं. You can loan your wonderful book that you have read many times. After reading, you can loan it to your friend so that he may benefit from the book that you have appreciated. Right? तो चलते हैं आगे. 44 sentence. Since 30 days, I am waiting for my turn. Since 30 days, I am waiting for my turn. Since 30 days. ये बहुत ज़्यादा जो अच्छी और ग्लेरिंग मिस्टेक्स हैं, ग्लेरिंग एरर्स हैं, उनमें से एक ये मानी गई है. टॉप 20 में ये आ सकती है. Since 30 days. और एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा सेंटेंस ये है. जितने भी कंपैटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, इस तरह का एक या दो सेंटेंस आना तय होता है. क्या मतलब है आप जान गए होंगे. सिंस आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहां पर देखिए सेंटेंस में दो एरर हैं. देयर आर टू एरर्स इन दिस सेंटेंस. द फर्स्ट एरर, सिंस 30 डेज एक लेंथ ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस. पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर अगर पीरियड ऑफ टाइम है, कोई लेंथ ऑफ टाइम है, तो वहां पे फॉर का यूज करते हैं. और अगर वहां पे परफेक्ट टेंस नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस नहीं है, तो उसको परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो आइए करते हैं इसको. सिंस की जगह पर, सिंस की जगह हम यहां क्या रखेंगे. जी हां, सिंस की जगह पर हम यहां रखेंगे फॉर. माफ कीजिए, सिंस की जगह पर यहां पे हम रखेंगे फॉर. ओके, कैन यू सी दैट प्लीज. सिंस की जगह पर हम यहां रखेंगे फॉर 30 days. और एम की जगह पर लेट मी यूज माई पीस ऑफ क्लॉथ here, and for 30 days I have been waiting for my turn. So continuous tense ये बताते हैं कि केवल काम हो रहा है, जबकि perfect continuous tense ये बताता है या बताते हैं कि कब से काम हो रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं for 30 days, 30 दिनों से I have been waiting for my turn, मैं अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं. इट मीन्स आपको मालूम है आप कितने समय से इस काम को कर रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीन पार्ट उनके होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऑल थ्री दे हैव सम कॉमन फैक्टर्स, एंड फॉर एंड सिंस and been and verb ing form that show that the work is in progress, and we do know that when the work started. Okay, next sentence 45. Jayesh, take your book, it is putting there. ये मैंने बहुत सुना है, schools में मैंने बहुत सुना है. And students also, they really learn, they derive their lessons, they receive their lessons from the educators. So we need to be very careful about it. We need to be on the alert while talking to our students and while using these words and phrases and sentences. So Jayesh, take your book, it is putting there. It is putting there. No, I have this magic wand, I can put it somewhere. इसको मैं कहीं रख सकता हूं. तो put माने होता है किसी चीज को कहीं पर रखना. एक कीप भी होता है रखना. कीप और पुट में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अभी यहाँ उस अंतर को नहीं देख रहे हैं, अभी अपनी बात पर चलते हैं. पुट, तो पुट माने होता है रखना. तो आपने किताब वहाँ रखी नहीं है, आप कहना चाहते हैं कि किताब वहाँ पड़ी हुई है. इट मीन्स देखिए, जब पड़ी हुई होती है कोई चीज़, तो उसका अधिकांश हिस्सा जो भी चीज़ है या कोई और भी चीज़ वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट राज इज लाइंग ऑन द सोफा. लाइंग ऑन द सोफा. So a book is lying on the table, you can say that. It means ज़्यादा हिस्सा, most part of the body, maybe it is human being, it is a human being, or it is a thing, in both senses, in both categories. So Jayesh, take your book, it is putting there, not putting there. You can use the word put माने रखना होता है, और lie माने होता है कहीं कोई चीज़ horizontally पड़े होना. तो लाई की स्पेलिंग मैं आपको यहां बता दूं, LYING.
So, Jayesh, take your book, it is lying there. So, be cautious enough to use this putting. Do not use putting in this sense. Put means रखना किसी चीज़ को कहीं पर. यहाँ पर putting की ज़रूरत नहीं है. आप अपने emotions को समझिए. Curb your emotion and try to understand before speaking. And you need to understand that put does not mean पड़ा होना. Put माने है किसी चीज़ को कहीं पर रखना, लेकिन यहाँ पे हम पड़े होने की सेंस में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम lying का इस्तेमाल करेंगे. So these 5 sentences are over, and now we are going to move forward, and with the next sentence I'll be again on the other side. Stay tuned and keep learning.